Okay, students, now it's the time, the same poem, and now we are moving towards the second stanza of the poem. I would like to give you once again the brief background of the poem. Here, the poet is comparing a hungry dog or the sea with a hungry dog. When the hungry dog is curious to have something to eat, so it shows aggression, it remains aggressive, it creates different sounds. Same is the case with the sea. Sea is showing the same, sentiments. So the poet is using metaphorical language to compare sea with a hungry dog. Now we are moving toward the second stanza, and the line starts here. And when the gentle wind roars and the moon rocks in the stormy cloud. Now, what the poet is talking about, page 82, poet is talking about the wind when it blows or when it roars at night. So that movement, the poet is representing the scenario, visionary imagery. The moon is enjoying or swimming over the clouds. It's enjoying. It has two meanings. एक मतलब ये है जो मैंने कल बताया, बट उससे ज्यादा करीब ये है कि पोएट ये बताना चाह रहा है कि जब तेज हवा चलती है रात को तो क्या करता है, चांद पाया जाता है बादलों के ऊपर झूलता हुआ. The poet is showing what the scenario of the night. But in the next line, he said, he bounds to his feet and snuffs and stiffs. Now, but the poet is representing what? The poet is representing, what? See, just like a wild animal who is jumping in excitement. पॉइंट क्या कर रहा है, एक वाइल्ड एनिमल, मोस्ट प्रोबेबली हम कुत्ते की बात कर रहे थे, तो एक्साइटमेंट में जंप लगाता है. एंड व्हाट डज ही डू? व्हाट डज दैट डॉग डू? ही बाउंड्स टू हिज फीट, जंप्स ऑन हिज फीट and snuffs and stiffs. Snuffs, he smells the air. Then stiffs का मतलब क्या होता है? He shakes his wet body just like a dog. देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप कुत्ते की बात करें, कुत्ता क्या है? कुत्ता अगर गीला हो और वो जब अपने बालों को जोर से झाड़े, तो इसी तरह द पोइट इज रिप्रेजेंटिंग द सी. कहता है ऐसा लगता है समुंदर, इट इज, इसके अगले लाइन पढ़ता हूं, शेकिंग हिज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ्स. The sea is also becoming just like a wild dog jumping on his feet and now shaking its wet body against the cliffs. आपने देखा जब समुद्र की लहरें लगती हैं उसके साथ जाकर क्लिफ्स के साथ, चट्टानों के साथ, तो पानी जरा उठता है. ये तो बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसे एक कुत्ता गीला हो और जब वो अपनी बॉडी को झोड़ता है, हवा की खुशबू लेता है, उसके बाद अपने गीले बदन को जब वो झाड़ता है, बिल्कुल इसी तरह समुंदर भी ऐसा ही लग रहा है कि इट इज शेकिंग, इट इज स्मेलिंग द एयर एंड at the same time shaking its wet body against the cliffs. तो क्या कर रहा है? वो भी ऐसा ही लग रहा है, एक पालतू या एक जंगली जानवर की तरह जो एग्रेसिव है, मोस्ट प्रोबेबली कुत्ता जो अपने बालों को झाड़ रहा है, जो गीला है. यहां पर समुंदर जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक्सटेंडेड मेटाफर, एक कुत्ते की तरह, इज लुकिंग लाइक अ वाइल्ड डॉग. और बिल्कुल कुत्ते की तरह ये भी ऐसा लग रहा है कि हवा की खुशबू लेते हुए अपने गीले बदन को झाड़ रहा है. और ये चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा है जब इसकी लहरें टकरा रही हैं रात के वक्त में समुद्र की करीब चट्टानों से या बड़े बड़े पत्थरों से. सो दिस इज द बैकग्राउंड व्हिच इज बीइंग गिवन ओवर हियर. और आखिर में क्या कहता है? एंड हॉल्स एंड hollows long and loud, and just like that dog, sea is also creating a very noisy sound and a loud sound. ये भी घुरा रहा है और रोरिंग कर रहा है, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह जो एक बहुत ऊंची आवाज क्रिएट कर रहा है. फिर से सुन लीजिएगा बेटे. इन दिस stanza the poet is representing the scenario of the night time, और लिटरली नई विजनरी इमेजरी पेश कर रहा है, in which the wind is blowing, roaring, एक तूफानी हवा चल रही है. And in that stormy night, in stormy weather, what is happening? The moon is swimming over the clouds. जो मून है वो बादलों के ऊपर झूलता दिखाई दे रहा है. और उसी वक्त में the sea is being represented by the poet just like a dog that is wet and shaking its wet body just to get warmer, just to get dry, at the same time smelling the wind. हवा की खुशबू सूंघते हुए अपने बदन या अपने बालों को झाड़ रहा है. Sea is also doing the same thing, striking the waves with the cliffs, giving the same impression of a dog as if it is shaking its his wet body, and
and smelling the wind. इस स्टेंजा के अंदर राइटर ने वंस अगेन समुंदर को एक वाइल्ड डॉग की तरह रिप्रेजेंट किया। एक तो ये है कि समुंदर, जब ये सिनेरियो होता है कि चांद एक तूफानी रात में जब हवा तेज घुराती है तो चांद बादलों पे झूलता दिखाई देता है और समुंदर एक वाइल्ड जानवर की तरह अपने पैरों पर कूद के खड़ा होकर इसकी खुशबू को एंजॉय करता है और उसके साथ ही क्या करता है, अपने गीले बदन को झाड़ता है। इसी तरह समुंदर को भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये भी एक वाइल्ड एनिमल की तरह क्या कर रहा है, जब ये इसकी चट्टानें, जब इसकी लहरें एक चट्टानों या चट्टानों के साथ जो समुंदर के करीब है उसके साथ टकराती हैं, तो ये ऐसे ही लुक, ऐसा ही सिनेरियो पेश कर रहा है जैसे कि ये भी गीला हो और अपने आप को सुखा रहा हो और एट द सेम टाइम हाउलिंग एंड रोरिंग, ऊंची आवाजें निकाल रहा है और घुरा रहा है, जस्ट लाइक अ हंग्री डॉग। वंस अगेन ओवर हियर द सी इज बीइंग रिप्रेजेंटेड जस्ट लाइक ए वेरी वायलेंट एंड अ वेरी एग्रेसिव डॉग। इसको यहां पर वायलेंट और एक एग्रेसिव कुत्ते की तरह पेश किया गया है। यहां तक क्लियर है? अच्छा बेटे, इसके अंदर भी इंजैममेंट का इस्तेमाल किया गया है। पहली लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान कोई कोमा नहीं है, तो यहां पर क्या यूज किया गया? इंजैममेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? अच्छा, इसमें एक बात और भी याद रखिएगा, द पोइट इज ऑल्सो यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। वो कैसे? इसने यूज किया स्नफ्स, खुशबू सूंघना, स्टिफ्स, अपने आप को झाड़ना। ठीक है जी, इसको रिपेल करने को भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके साथ हाउल्स एंड हॉलोज। अब ये सारी वो क्वालिटी है जो इंसानों के अंदर है। अब यहां ऑडिटरी इमेजरी का इस्तेमाल किया गया, आवाजों का मुख्तलिफ इस्तेमाल। तो हमने क्या चीज समझी थी? एनोमेटोपिया, आवाजों का एग्जैक्ट एक्शन की तरह साउंड करना, दैट इज व्हाट वी कॉल एनोमेटोपिया। ठीक है बेटे, मेथड स्टेंजा की तरफ चलता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अब आ रहे हैं हम दी अदर फेस और द अदर प्रोफाइल और द अदर एटीट्यूड ऑफ द सी एंड द डॉग। क्योंकि मैंने आपको बताया पोइट इस्तेमाल कर रहा है एक्सटेंडेड मेटाफोर को फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। हर स्टेंजा के अंदर कंपेयर करेगा सी को विद अ वाइल्ड और एग्रेसिव डॉग। अब तीसरे स्टेंजा में देखते हैं कि वो जो ड्युअलिटी की मैं बात कर रहा था, ड्युअलिटी कहां गया? हियर। यहां पर ये सजेस्ट कर रहा था डेंजर एंड पावर, लेकिन काम एंड पीसफुल सजेस्टिंग व्हाट? ट्रैंक्विलिटी। तो देखते हैं क्या ये एलिमेंट हमारे सामने आ रहा है। अब क्या कहता है? बट ऑन द क्वाइट डेज इन मे और जून, on the quiet days in May or June, it is considered that most probably, बाज लोग कहते हैं मई, बाज लोग जून को ज्यादा कंसिडर करते हैं जब समुंदर बिल्कुल काम हो जाता है। कहता है लेकिन पुरसकून दिनों में it behaves like a very calm dog who is fully satiated। satiated उसको कहते हैं जब उसका पेट भरा हो। तो एक समुंदर को अब ये रिप्रेजेंट करने जा रहा है एक ऐसे कुत्ते की मानंद जो अब बिल्कुल काम डाउन हो चुका है। वो कैसे? कहता है when even the grasses on the dune, dune कहते हैं रेत के तोदे। कहता है उस वक्त जब हर चीज खामोश हो, when everything is quite silent, even the sand dunes near the grass are also soundless, also still। जब समुद्र के करीब या सैंड ड्यूज, जो रेत के तोदों के करीब जो उगी हुई घास है, वो भी जो सनसनाहट होती है हवा के चलने से उनमें, वो भी बाकी नहीं है। It means they are silent now। The sea is also representing itself just like that। और क्या कहता है? Play no more their reedy tune। And now the poet is representing what? Sea with a very very calm dog। Right now in May or June, this is the time when sea is represented, or sea remains very calm and silent। It is the time when everything related to that is silent. Even the grass, even the sand dunes which are present over there, and the grass near that is quite silent and is not ready to create a whistling sound। आपने देखा जब ग्रास या पौधों के करीब हवा चलती है तो इससे एक सनसनाहट की आवाज आती है। कहते हैं इवन वो सनसनाहट भी मालूम नहीं हो रही है। So sea is very calm। क्या कहता है? With his head between his paws, and now the sea is looking like a dog who is quite silent, who is quite calm, having his head between his paws। कुत्ता जब साइलेंट हो, काम हो,
एग्रेसिव ना हो, तो आप उसको बैठे हुए पाते हैं और आप देखते हैं कि उसका जो सर होता है उसके पंजों के दरमियान होता है, एंड इट नेवर बार्क्स and it never creates any sort of sound. It is not aggressive anymore. It shows that the dog is quite satisfied. It is satiated. Satiated का मतलब अब इसकी डिमांड जो उसने खाना पीना था वो पूरा हो चुका है, लिहाजा कुत्ता अपना सर पंजों के दरमियान में रख के सुकून से बैठा है. Over here मैं बात तो कुत्ते की कर रहा हूं, but right now you are supposed to keep C in your mind. Here the C is calm and peaceful, suggesting that इट इज शोइंग ट्रैंक्विलिटी, खामोशी और सुकून का मुजाहरा कर रहा है. तो मैंने क्या बताया था, देयर इज थ्रू सी इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेचर. यहां पर सी क्या है कि नेचर का एक रिप्रेजेंटेटिव है. तो मैंने आपको क्या बताया था, नेचर कैन बी काम, नेचर कैन बी डिस्ट्रक्टिव, इट कैन बी सर्वाइवर, ये बचाने वाली भी हो सकती है, इट कैन बी प्रोटेक्टर, ये आपकी मुहाफिज भी हो सकती है, बट इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू, ये आपको तबाह भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है. ठीक हो गया. सो these things are being represented by the sea. Sea is beautiful. जब ये खामोश है तो बड़ा प्यारा लगता है, उस समय वो भी तो प्यारा तो लगेगा, लेकिन काम होगा तो लोग जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव होगा तो किसी भी चीज को करीब नहीं छोड़ेगा और तबाह बर्बाद कर देगा. Here I am talking about the dog, but basically you must keep one thing in your mind. I am talking about sea. इसी को कहते हैं extended metaphor. कि throughout the poem मैंने क्या कहा कि मैंने सी को कुत्ते की तरह रिप्रेजेंट किया, वो तमाम क्वालिटीज जो एक कुत्ते के अंदर है, डुअल क्वालिटीज, एग्रेसिव भी, काम भी, गुस्से वाला भी, प्लेफुल भी, तेज भी, सुकून में भी. सेम इज द केस विद योर सी. ओवर हियर द पोएट इज रिप्रेजेंटिंग अ वेरी काम एटीट्यूड ऑफ द सी. नाउ सी इज वेरी काम, everything is silent, it is making no noise at all, it is not showing any sign of violence, it is not showing any sort of aggression. It seems as though it were calm, it is satisfied. अब इसकी भूख मिट चुकी है, जो ये चाह रहा था वो पूरा हो गया, जो इसकी एक्टिविटी थी वो पूरी होगी, just like the dog. और आगे कहता है he lies on the sandy shores. Now if you talk about a dog who is now eaten everything whatever it was demanding, जो उसको जरूरत थी उसको मिल गई, अब वो बैठा हुआ है बिल्कुल सुकून से और इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और उसके सर जो है पंजों में है और खामोशी के साथ तो कोई आवाज क्रिएट नहीं कर रहा, अपनी जगह पर बिल्कुल खामोश होकर बैठा हुआ है, यहां तक कि हर चीज खामोश है. बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट इज दिस सी. सी इज आल्सो calm. The waves are no more clashing, not creating rumbling and tumbling sound of the storms, not striking against the cliffs. अब चट्टानों से नहीं टकरा रही हैं उसकी लहरें, अब लहरें भी सुकून में हैं. So that's why the sea is looking like a very calm and a very peaceful dog, suggesting what? Tranquility. So sea can be both beautiful and destructive, can be both violent and calm, can be both quick and rest, can be very aggressive in the storming weather, but can be very beautiful and very peaceful during what? During a very calm weather, especially most probably in June, which has been mentioned. और आखिर में कहता है lies on the sandy shores so quietly, he scarcely snores. Even the sea is like that dog. वो तो बात करनी मजबूरी है क्योंकि एक्सटेंडेड मेटाफर है. एक कुत्ता जो सेटिस्फाइड है और अपने पंजों पे सर रख के सो रहा है और इतना भी साउंड उससे क्रिएट नहीं हो रहा कि उसके सांस लेने की भी आवाज है. सेम इज द केस विद योर सी. The sea is so calm and tranquil, even the sound of breathing cannot be expected. As the sound of breathing cannot be expected of a calm dog, the sea is so calm that even any sort of noise cannot be audible. यहाँ पर सी से भी किसी किस्म की आवाज की कोई तवक्को नहीं है, जितना कि खामोश कुत्ता इस वक्त सुकून में है, सी भी अपनी जो डुअल कैफियत, जो दूसरी कैफियत है जिसमें बहुत सुकून में होता है, वो सुकून में है और किसी किस्म का कोई शोर शराबा नहीं है. तो हम कह सकते हैं देयर इज अ कामनेस विद इन इट्स एग्रेशन. समुंदर के गुस्से के अंदर कामनेस भी है. इट इज ब्यूटीफुल, इट इज डिस्ट्रक्टिव. तो हमने इसकी डिस्ट्रक्टिव कैफियत को देखा पहले दो स्टेंजेस के अंदर. वो डिस्ट्रक्टिव था, वायलेंट था, गुस्से में था, गुर्रा रहा था, चिल्ला रहा था, इसकी तरह ए वाइल्ड डॉग. बट राइट नाउ एट द सेम टाइम फिर कुत्ते की मिसाल दी कि now the dog is quite silent, peaceful, not creating any sort of sound. Why? The dog is satisfied. It has fulfilled its appetite. उसकी हो सकता है भूख मिट चुकी है, लिहाजा
Samundar is, I must say, the sea is also giving the same, scenario, the same look, that it is quite calm, not creating any sort of sound, and it is looking just like a dog sitting or sleeping, having his head on between his paws and creating no sound, just like the dog. And the sea is also having the same attitude right now. या तो कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? मैं इसको उर्दू में बता देता हूँ। मुझे आखिरी स्टेंजा की हमने क्या बात की, ये वो स्टेंजा है जब हम इस क्वालिटी से हटकर इस क्वालिटी पर आ गए। हमने इस क्वालिटीज को देखा, अब इस क्वालिटी पे आ गए। अब हम इसके वाइल्ड होने से जेंटल पर आ गए, हम कुत्ते के एग्रेसिव होने से प्लेफुल होने पर आ गए। अब इसके हॉलिंग के बजाय हम इसकी रेस्टिंग एक्टिविटी, स्लीपिंग एटीट्यूड की तरफ आ गए। अब लास्ट स्टेंजा में पोइट ने क्या कहा कि एक ऐसे महीने का तस्करा कर दिया जो मई और जून, मोस्ट प्रोबेबली कहते हैं जून में, समुद्र इतना ठहर जाता है कि वो एक कुत्ते की मानंद हो जाता है। ऐसे कुत्ते की मानंद जो अपना शिकार कर चुका है, खा चुका है, उसकी भूख मिट चुकी है, और अब वो किसी किस्म का कोई शोर नहीं मचा रहा, और अब ऐसा लग रहा है कि कुत्ता इतना सुकून में कि किसी एक चीज की आवाज भी क्लियर नहीं है। जो ग्रास है, जो सैंड ड्यून्स है, जो रेत के तोते हैं, उसके करीब उगी हुई घास, उनकी सनसनाहट भी नहीं सुनी जा सकती। ये कुत्ता भी ऐसा ही लग रहा है कि इसका सर इसके पंजों के दरमियान है और वो चुप करके सोया हुआ है, यहां तक कि उसके सांस लेने की आवाज तक भी सुनी नहीं जा सकती। बिल्कुल इसी तरह का एक मंजर पेश कर रहा है आपका समुंदर, जो कि काम और पीसफुल से इसको रिप्रेजेंट किया जाए, ट्रैंक्विलिटी, खामोशी का इजहार कर रहा है। तो साबित यह हुआ, नेचर हैज गॉट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज, इट हैज मैनी डायमेंशन, इट हैज मैनी शेप्स, it can be dangerous, it can be beautiful, it can be protector, it can be destructor, it can be gentle, it can be wild. It has many ways, but it's upon the reader, it's upon you and me, how we understand it and how we perceive the different meanings of the nature. So that's why अगर आप नेचर की बात करते हैं तो sea is the tool of nature. और नेचर किसके अंडर आती है? नेचर इज रिप्रेजेंटिंग द हिडन पावर्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी, दैट गॉड हैज गॉट पावर, गॉड इज द ओमनीपोटेंट, हैविंग ऑल द पावर्स, कैन डू एनीथिंग, कैन क्रिएट डेंजर आउट ऑफ अ पीसफुल एनवायरमेंट and can create a peaceful environment out of a danger. So there are so many examples which are present in the history we can go through. So I hope the message is very well conveyed. Inshallah, in the coming class, we'll have something else. Thank you very much.